were discussing Kirchhoff's second law. And I discussed some steps to apply Kirchhoff's second law in a circuit. Okay, let me recall. Suppose this is an electrical network in which we have three resistors R1, R2 and R3 and this cell of EMF E, and we can name this loop A, B, C, D. Now I discussed some steps to apply Kirchhoff's second law in a loop. So first step was to decide the loop and name the loop. बच्चों सबसे पहले हमने लूप डिसाइड किया और फिर उसका नाम रखा. नाम हम कहीं से भी स्टार्ट करके रख सकते हैं. We can start from any of the point A, B, C or D and we can name it in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So let I name it as loop D A B C D. Okay, this is the name of my loop and you can see that it is in clockwise direction. So I mark an arrow like this. Now the second step is to pass current in any direction in the branches of the loop, and in this circuit you can see that there is no junction and no branch, so there will be only one current and you can pass it like this. Suppose the current is I and you can pass this current in anti-clockwise direction or clockwise direction. You can show the direction of current either anti-clockwise or clockwise. किसी भी डायरेक्शन में आप बच्चों करंट की डायरेक्शन शो कर सकते हैं. Now the third step is to assign polarity to resistors. और polarity कैसे assign करते हैं मैंने आपको बताया. Current, if current is flowing from left to right, you will write plus here and minus here, and if current is flowing from right to left like this, then plus here and minus here. Now according to the current that I have taken in the circuit as clockwise, polarity of resistances will become like this: plus minus and plus minus. Now you can simply write Kirchhoff voltage equation by writing the algebraic sum of rises and falls of potentials and you can equate it to 0. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. D से A तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई राइज नहीं है. D से A के बीच में ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बच्चों. उसके बाद हमें देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस सामने हम फेस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस R1. इन द रेजिस्टेंस R1 देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप and the sign that you are facing is, you can see that sign you are facing is this one as positive. Okay, so as you move like this, first sign you face as positive, so you will write plus. Okay, now according to Ohm's law, you know that voltage is equal to I into R. So resistance is R1 and current flowing through it is I, so the voltage drop will be, according to Ohm's law, it will be I R1. Okay, now we move on to another resistance and the sign we face again is as positive, so again we will write positive and again we will write voltage drop, that is I R2. Same current I will be flowing through R2 also. And now when we move on to third resistance, again we face positive sign and we can write plus I R3. And after passing through resistances, we move like this and sign we face as the sign of negative terminal of battery. तो बच्चों जो साइन हम फेस करेंगे, हमारे सामने कौन सा साइन है, देखिए आप, ये नेगेटिव साइन है, तो हम लिखेंगे माइनस EMF E. बच्चों सेल का जो EMF है that is a voltage itself, so you need not multiply it by current.
इसको आपको करंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां सेल है वी स्ट्रेट वे राइट द वोल्टेज ऑफ द सेल। ओके, सो द टोटल इज 0। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको लिखनी आई किरचॉफ की वोल्टेज इक्वेशन। चलिए एक बार फिर से किरचॉफ की वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं, मगर दिस टाइम लेट अस name the loop in another direction. We can name the loop in another direction as like this. You can see, suppose this was your loop. There were three resistances R1, R2, R3. It was A, B, C, D, EMF E. अभी मैंने आप बच्चों लूप का नाम रखा था D, A, B, C, D, and it was clockwise direction. Now let us name the loop in anti-clockwise direction and let us try to write the equation again. Okay, if I write the name of loop in anti-clockwise direction like this, so we will mark an arrow like this and we can name it as loop applying KVL in the loop DCBAD. Okay, आप इस तरह से भी बच्चों लूप का नाम लिख सकते हैं, and you can see that it is in anti-clockwise direction. आइए एक बार फिर से लिखते हैं इक्वेशन। तो पहला काम क्या करना है, हमें करंट डिसाइड करना है। करंट किसी भी डायरेक्शन में आप पास कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मान लो करंट मैंने इस डायरेक्शन में ही पास किया हुआ है, जैसे पहले पास किया था, अभी भी मैंने वैसे ही करंट को पास किया है। ओके, तो चलिए एक बार फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं किरचॉफ की, स्टार्टिंग फ्रॉम डी। तो बच्चों डी से जाना है और डी सी बी ए डी ये हमारा पाथ होगा। ओके, डी से सी की तरफ पहले मूव करेंगे, फिर सी से बी की तरफ मूव करेंगे, फिर बी से ए की तरफ मूव करेंगे और फिर ए से वापस डी पे आएंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों वहीं पे फिनिश करेंगे। ओके, तो जब हम डी से बच्चों सी की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज, द पहली वोल्टेज जो हम फेस करेंगे दैट विल बी द वोल्टेज ऑफ सेल। ओके, विच इज ई। और यहां पे टर्मिनल की हम बात करें तो जो टर्मिनल हम फेस करेंगे वो होगा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। डी से सी की तरफ जाते समय सबसे पहले हम फेस करेंगे बच्चों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, एंड द वोल्टेज इज ई, यू कैन राइट ई। ओके, नाउ आफ्टर writing this voltage of the cell, then we will move from C to B, and from C to B there is no cell and no resistance, so there is no rise of potential and there is no fall of potential. Now we come to resistance R3. Okay, you see in case of resistance R3 current is flowing in clockwise direction and we are moving in anti-clockwise direction. प्यारे बच्चों देखिए, through resistance R3 current is flowing like this. This was the direction of current that we have already taken. The direction of current that we have already taken, and we are moving in, current is flowing in clockwise direction and we are moving in anti-clockwise direction. तो बच्चों जब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं तो वी सिंपली राइट नेगेटिव साइन, और यू कैन असाइन पोलैरिटी आल्सो हियर। पोलैरिटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे करंट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, सो हियर यू विल राइट प्लस एंड हियर यू विल राइट माइनस। रेजिस्टेंस को आप पोलैरिटी भी दे सकते हैं, ऐसे करंट के हिसाब से मैंने आपको सिखाई थी पोलैरिटी देनी। अदरवाइज विदाउट पोलैरिटी भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि इफ यू आर मूविंग इन द लूप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट यू विल सिंपली राइट माइनस, एंड इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट you will write plus. Okay, so here you are, because you are moving opposite to the direction of current, you will write minus.
Now voltage drop in resistance R3 will be current in resistance R3 multiplied by resistance R3. Okay. After writing the voltage of resistance R3, we move on to resistance R2. And the sign we face again is as negative sign. So we'll write minus, current is I again, and resistance is R2. After writing the voltage of resistance R2, we move on to resistance R1. And the sign we face again is negative. And we will write minus, current multiplied by resistance R1. Okay. And there is no potential drop from A to D, and there is no potential rise. And again we have come back to D. So we started from D and we have finished at D. बच्चों D से हमने start किया और D पे ही finish किया. So the algebraic sum of rises and falls of potentials in this loop is 0. तो बच्चों इस तरह से हमने लिख दी किरचॉफ्स की वोल्टेज इक्वेशन इन दिस लूप. तो आई होप आपको किसी भी लूप में किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लिखना आ गया. तो बच्चों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टेप्स क्या थे. पहला स्टेप है कि हमें लूप डिसाइड करना है. दूसरा स्टेप उसका हमें नाम रखना है. एंड वी कैन नेम द लूप स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आफ्टर दैट वी पास करंट इन एनी डायरेक्शन इन द ब्रांचेज ऑफ द लूप. उसके बाद बच्चों लूप की ब्रांचेज में किसी भी डायरेक्शन में हमें करंट पास कर देना है. एंड देन वी जस्ट राइट द algebraic sum of voltages in the loop and we equate it to 0. And this is our Kirchhoff's second law. The steps to apply Kirchhoff's second law. आइए बच्चों इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. चलिए देखते हैं. बच्चों हमने दोनों लॉज सीख लिए हैं और अब हम इनकी एप्लीकेशंस करेंगे. Okay, this is a circuit and in this circuit you have to find the current. Find the current flowing in the circuit and he may ask you find the potential drop in 3 resistors 2 ohm 3 ohm and 7 ohm. इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और इस लूप में बच्चों आपको करंट निकालना है. लूप में करंट कैसे निकाला जाए? तो बच्चों लूप में करंट हम स्ट्रेट वे ओम्स लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और लूप में करंट हम किरचॉफ्स लॉ से भी निकाल सकते हैं. ये एक सिंपल लूप है. अगर हम यहां पे ओम्स लॉ लगाना चाहें, यू नो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है? V is equal to IR. So what is the current? Current in the loop is V by R, that is net voltage upon net resistance. नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस. बच्चों इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि नेट वोल्टेज अगर हम कैसे निकालें, अगर बच्चों दो सेल्स इस तरह कनेक्टेड हैं, दैट नेगेटिव ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर सेल. तो इस तरह बच्चों दोनों सेल्स का ईएमएफ ऐड हो जाता है. दैट इज 2 वोल्ट है. अगर ये 3 वोल्ट है तो नेट ईएमएफ बन जाता है 2 + 3 दैट इज 5 वोल्ट. 2 + 3 5 वोल्ट. बट अगर बच्चों एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है इस तरह से, जैसे कि हमें सर्किट में दिया हुआ है 8 वोल्ट इसका है 2 वोल्ट इसका है, सॉरी. तो बच्चों यहां पे this is 8 volt and this is 2 volt. So the total net voltage will be 8 minus 2, that is 6 volt. Okay, so according to Ohm's law we can simply find the value of current in this circuit, and the current in the circuit will be net voltage is 6 volt upon net resistance. And you can see that all the 3 resistors are in series
So the net resistance will be 2 plus 3 plus 7. That is 12 ohm. So dear students, current in the circuit will be 1 by 2 ampere. That is 0.5 ampere. So you can find the value of current in the circuit using Ohm's law. तो बच्चों ये ओम्स लॉ से हमने सर्किट में करंट निकाला. अब हम इस सर्किट में करंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ. ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नेम द लूप. इसका हम नाम रखेंगे. चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ए. लूप का नाम हो गया हमारा ए बी सी डी ए. ए बी सी डी ए. और इसको हमने नाम रखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दूसरा स्टेप बच्चों हमारा क्या था. अवर नेक्स्ट स्टेप वाज टू पास करंट इन एनी डायरेक्शन इन द ब्रांचेस ऑफ द लूप. नाउ इन दिस सर्किट देयर इज नो ब्रांच, सो देयर विल बी ओनली वन करंट. अगर बच्चों सर्किट में कोई ब्रांच ही नहीं है तो केवल एक ही करंट फ्लो करता है. तो यहां से एक करंट हुआ आई, जिसकी हम कोई भी डायरेक्शन शो कर सकते हैं. हम करंट क्लॉकवाइज भी शो कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज भी शो कर सकते हैं. ये मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं. ओके, तो चलिए मैंने करंट को शो किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आफ्टर दैट वी कैन असाइन पोलैरिटी टू रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू करंट. बच्चों 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट इधर जा रहा है, 3 में भी इधर जा रहा है करंट, 7 ओम में भी करंट इधर जा रहा है. तो वी कैन असाइन पोलैरिटी टू रेजिस्टेंसेस लाइक दिस. Now let us write Kirchhoff voltage equation. In the loop A, B, C, D, A. From A to B, there is no potential rise, no potential fall. Okay. Now from B to, जब हम B से जाते हैं C की तरफ, so first we face the sign we face as the, सबसे पहले बच्चों हमने फेस किया पॉजिटिव साइन. सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस and we will write the voltage. To write the voltage, we multiply current by resistance. It is 2 into I. Okay. Then after writing the voltage of resistance 2 ohm, we will move on to 3 ohm, and again we face the sign as positive. We will write plus. Resistance is 3, current is I again, so it is 3I. Again we face plus sign. Resistance is 7, current is I, and then we face बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. जब हम इधर से आते हैं तो पॉजिटिव साइन फेस करते हैं तो हम लिखेंगे प्लस, एंड इट इज 2 वोल्ट इटसेल्फ. तो बच्चों यहां पे आपको करंट से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद एक वोल्टेज है. ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर राइटिंग द वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेल, एंड द साइन वी फेस इज एज यू कैन सी दैट इट इज नेगेटिव साइन. वी विल राइट -8 वोल्ट, and again we come back to A. So we started from A and we have come back to A. बच्चों A से हमने स्टार्ट किया और हम वापस A पर आ गए. So algebraic sum of all the voltages should be equal to 0. Okay, so 2 plus 3 plus 7, it comes out to be 12I, and it is -6 volt is equal to 0. So 12I is equal to 6 and I is equal to 6 by 12 or 1 by 2 एम्पियर. तो बच्चों दोनों ही तरीके से हमने करंट की वैल्यू निकाली. ये हमने करंट की वैल्यू निकाली किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से, और ये हमने करंट की वैल्यू निकाली थी ओम्स लॉ से. आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी. आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं on the basis of Kirchhoff's laws. चलिए देखिए, it is an electrical circuit. And you have to find the current in this circuit. Okay, this is 12 ohm, this is 6 ohm,
This is 24 volt cell, and you have to find the current in this circuit. Find I. Total current drawn from the cell भी निकलवा सकता है आपसे, and he may ask you that find the current in each resistance. Find current I in each resistance. हर रेजिस्टेंस के अंदर से कितना कितना करंट पास कर रहा है ये भी आपको निकालना पड़ सकता है. आई टोटल करंट भी निकालना है एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस फाइंड करना है. करंट इन ईच रेजिस्टेंस. तो चलिए बच्चों, ओम्स लॉ से इसको हम कर ही सकते हैं आसानी से. ओम्स लॉ से करने के लिए पहले हमें 12 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, बिकॉज 12 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद 6 ohm resistance. So 12 ohm parallel with 6 ohm. You can get R equivalent. कितना आएगा? 12 into 6 upon 12 by plus 6. That is 4 ohm. Now this 4 ohm will be in series with 2 ohm. So total resistance in this circuit will be 2 ohm plus 4 ohm. It will be 6 ohm. And total voltage is 24 volt. So the net current drawn from the cell will be net voltage upon net resistance. And net voltage is 24 volt and net resistance is 6 ohm. So dear students, current drawn from the cell will be 4 ampere. तो बच्चों ये हमने करंट निकाला with the help of Ohm's law. Okay. अब फिर से निकालते हैं. चलिए अब की बार ओम्स करंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम करंट को फाइंड करेंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें लूप देखने हैं, लूप के नाम रखने हैं. तो यहां पे सर्किट में हम नाम रख सकते हैं. देखो ए बी, यहां पे एक पॉइंट सी मान सकते हैं हम, यहां डी लिख सकते हैं, यहां ई लिख सकते हैं. Then we can write F, G. Here you can write H. I हम नहीं लिखेंगे क्योंकि I तो हम करंट को लिखते हैं बच्चों, और यहां पे हम J लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए अब हम करंट पास कर देते हैं इस लूप में. ओके. So let us start current from this. Let the current supplied by the cell is I. So this current I will flow in this circuit. It will start like this and it will reach up to point C. बच्चों पॉइंट C पे आके क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा. ओके. तो मान लेते हैं कि 12 ओम रेजिस्टेंस में करंट गया I1. आउट ऑफ टोटल करंट I, the current in resistance 12 ohm is I1. So the remaining current will be I minus I1. That is, it will go in resistance 6 ohm. यहां पे आके बच्चों दोनों करंट दोबारा कंबाइन हो जाएंगे इस पॉइंट पे, एंड अगेन इट विल बिकम आई, और निकल के बाहर आ जाएगा करंट आई. ओके. तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ. नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर आर टू वेरिएबल्स, दैट इज आई एंड I1. बच्चों इस सर्किट में दो वेरिएबल हैं, एक I है और एक I1 है. आपको दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस. ओके. तो दो वेरिएबल बच्चों सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर टू इक्वेशंस. एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन होती है. और बच्चों एक लूप से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. एंड इन दिस सर्किट यू कैन सी दैट देयर आर हाउ मेनी लूप्स कैन यू ट्रेस हियर इन दिस सर्किट? इन दिस सर्किट यू कैन ट्रेस 3 लूप्स. इस सर्किट में बच्चों 3 लूप हैं. आप ध्यान से देखिए. पहला लूप है स्टार्टिंग फ्रॉम ए में बोल ए बी डी ई. अच्छा यहां पे भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, हमसे मिस हो गया ये. चलो के लिख देते हैं. तो ए बी सी डी ई के एच जे ए, ये हम लूप का नाम रख सकते हैं. देन ए बी सी एफ
GKHJA, ये भी हम रख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों एक छोटा लूप हम लिख देख सकते हैं यहाँ पे DEGFD। तो इस सर्किट में 3 लूप हैं and we have only 2 variables, so we require only 2 loops to solve. So we can take any of these 2 loops, हम किन्हीं भी 2 loops को हम ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं ये वाला लूप, applying KVL in the loop A, KVL in loop A, B, C, D, E, K, H, J, A। ठीक है, इस तरह हम कुछ भी इसका नाम लिख सकते हैं। और चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए से बी तक बच्चों कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। फ्रॉम बी टू सी इफ वी मूव वी फाइंड रेजिस्टेंस 2 ohm एंड द करंट इज I and we are moving in the direction of current. And I told you that if we are moving in the direction of current, we will write plus. पहले प्लस लिखेंगे, अदरवाइज बच्चों आप पोलैरिटी भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। So we will write 2I. Okay, then A, B, C, D, D से E की तरफ हम जाएंगे। C, D तक हो गया, देखो D से E की तरफ। तो D से E की तरफ जाएंगे तो 12 ohm रेजिस्टेंस है, और 12 ohm रेजिस्टेंस में बच्चों करंट फ्लो कर रहा है I1। The current flowing in 12 ohm resistance is I1 and we are moving in the direction of current, so we will write plus again 12I1. From E to K there is no potential drop, from K to H no potential drop, H to J no potential drop. Now from J to A, if we are coming from J to A, the sign we face as is negative sign, so we'll write minus 24 volt. It is volt itself, so you need not multiply it by current. And again we come back to A, so we write is equal to 0. तो बच्चों इस तरह से इक्वेशन बन गई 2I plus 12I1 is equal to 24. And just by dividing it by 2 throughout the equation we get I plus 6I1 is equal to 12. This is your equation number 1. प्यारे बच्चों, now you can apply Kirchhoff's second law in another loop. अब आप दूसरे लूप में KVL लगा सकते हैं। Let us apply KVL in small loop. छोटा लूप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम लगाते हैं। चलिए KVL, इसका भी कुछ नाम लिख लेते हैं लूप का, और इसका नाम है, चलिए लिख लेते हैं DEGFD। ओके, ये लूप का नाम है, इसमें हम लगाते हैं। तो D से स्टार्ट करते हैं, D से E की तरफ जाते हैं। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वी विल सिंपली राइट व्हाट, प्लस 12I1। फ्रॉम E टू G नो पोटेंशियल ड्रॉप। फ्रॉम G टू F, ध्यान से देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम G टू F वी आर मूविंग एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम F टू G। करंट F से G की तरफ जा रहा है एंड वी आर मूविंग फ्रॉम G टू F, सो विल राइट माइनस, resistance is 6 and current is I minus I1. Okay, now from F to D no potential drop and we again come back to D and the algebraic sum is 0. ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 12I1 minus 6I plus 6I1 is equal to 0 and it comes out to be minus 6I 18I1 is equal to 0. Dividing throughout the equation by 6, we get minus I plus 3I1 is equal to 0. This is our equation number 2. Now by solving the two equations, equation 1 and equation 2, these two equations, इनको बच्चों आप solve कर सकते हैं। You have already learned the method to solve the linear equations in two variables. ये आपने सीख चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I एंड I1, और I और I1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यू कैन अप्लाई
the three methods that you have learnt in your class 10th, that is, you can solve these two equations by the method of substitution, or you can solve by elimination method or cross multiply method. ओके, तो चलिए एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मान लो ये दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली, और सॉल्व करने के बाद करंट्स की वैल्यू आई, एक करंट था हमारा, वेरिएबल था आई, और तुम्हारा दूसरा वेरिएबल था बच्चों I1। ओके, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक करंट की वैल्यू आती है +2 एम्पियर, दूसरे करंट की वैल्यू आती है मान लो -3 एम्पियर, फॉर एग्जांपल। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो बच्चों एक करंट का साइन प्लस आ जाता है और एक करंट का साइन माइनस आ जाता है। व्हाट डज इट मीन? तो बच्चों अगर करंट सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस को अगर करंट का साइन प्लस आता है, इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट यू हैव अज्यूम्ड इज द राइट डायरेक्शन। जो भी आपने करंट की डायरेक्शन मानी थी वो सही डायरेक्शन है। ओके, बट इफ द साइन ऑफ करंट इज नेगेटिव, अगर बच्चों करंट का साइन माइनस आ जाता है, देन यू हैव टू राइट ए स्टेटमेंट, एक लाइन आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी, दैट minus sign states that whenever you get the value of current as negative, then you will write minus sign states that actual direction of current is opposite to the assumed direction of current. Actual direction of current is opposite to the assumed direction of current. You can write this statement. Okay, I hope आपको ये पॉइंट समझ आया। आइए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम इसके बेस पर। तो बच्चों एक सर्किट है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फाइंड दी करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। इस नेटवर्क की हर ब्रांच में आप करंट निकालिए। दिस इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस see the branches. So I would like to recall you that what is a branch? A branch is a wire which starts from a junction and ends at another junction. So here you can see that there are two junctions. Number one, this junction J1, and number two, this junction J2. There are two junctions, junction J1 and junction J2. Here you can write A, B, C, D. So in this circuit you can see that there are three branches. ब्रांच के नाम हम लिख लेते हैं बच्चों। पहली ब्रांच है J1 A B J2, दूसरी ब्रांच है J1 J2, and the third branch is J1 D C J2. These are the three branches and you have to find the current in these three branches. तो बच्चों एक स्टेप हमारा था किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते समय, दैट पास करंट इन एनी डायरेक्शन इन द ब्रांचेस ऑफ द लूप। लूप की ब्रांचेस में किसी भी डायरेक्शन में आप करंट पास कर दीजिए। ये हमारा एक स्टेप था। तो चलिए पास कर देते हैं करंट किसी भी डायरेक्शन में। देखिए, तो मान लो मैंने करंट पास कर दिया इस डायरेक्शन में, एंड लेट अस सपोज दिस करंट इज I1, वी कैन कॉल इट I1। इस वाली ब्रांच में भी मैंने करंट पास कर दिया, मान लो I2। अब आप सोच रहे होगे कि नेगेटिव से सर ने करंट निकाल दिया। बेटा किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को पास कर सकते हैं सॉल्व करते समय, बट फाइनली अगर आंसर नेगेटिव आता है, यू विल राइट द स्टेटमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
that minus sign shows that assumed actual direction of current is opposite to the assumed direction of current. तो यहां पे आप देखिए I1, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ब्रांच जो होती है इट इज वन वे रोड, तो एक ब्रांच में एक ही करंट होता है बच्चों। तो J1 J2 ब्रांच में करंट है I2, J1 DC J2 में करंट है I1। तो इस पॉइंट जंक्शन पे, जंक्शन J1 पे दोनों करंट्स यूनाइट करेंगे, ऐड हो जाएंगे, और इस ब्रांच में जो करंट जाएगा बच्चों कितना जाएगा, इट विल बी I1 प्लस I2। यू कैन राइट लाइक दिस, आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर ऐसा आ रहा है सर्किट में तो आप कई तरीके से करंट बना सकते हैं। आप यहां से करंट I1 ले सकते हैं, यहां पे I2 ले सकते हैं, उसके अलावा दोनों करंट यहां पे ऐड हो जाएंगे और यहां पे आप I1 प्लस I2 भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप एक और भी तरीका कर सकते हैं, इन एनी वे यू कैन, आप यहां से I1 दिखा सकते हैं, यहां से I2 दिखा सकते हैं। तो यहां से I1 I2 गया बच्चों और इधर से I1 आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो इधर कितना जाएगा, I1 प्लस I2। इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। और भी एक तरीका आप ले सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं कि मान लो यहां से करंट I1 आ रहा है, तो I1 यहां से यहां तक है, आउट ऑफ दैट मान लो I2 चला गया इधर, तो बच्चों I1 करंट यहां से यहां तक आया जंक्शन J1 तक, उसमें से I2 करंट इधर चला गया राइट में, तो इधर के लिए जो करंट बचे कितना बचेगा, इट विल बी I1 माइनस I2। इस तरह भी आप करंट को डिवाइड कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी जंक्शन पे करंट डिवाइड कर रहे हैं तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल फॉलो होना चाहिए। ओके, तो मैंने करंट यहां पे ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे अब दो वेरिएबल हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स I1 एंड I2। सो यू कैन सिंपली अप्लाई KVL इन द टू लूप्स। कोई भी दो लूप आप ले सकते हैं, यहां पे तीन लूप दिखाई दे रहे हैं, देखो पहला लूप है J1 A B J2 J1। देयर आर थ्री लूप्स इन दिस सर्किट। लूप के नाम देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ब्रांचेस बनाई थी। अभी लूप देखिए, पहला लूप है J1 A B J2 J1। दूसरा लूप है देखिए J1 J2 C D J1। तीसरा लूप आप बड़ा लूप ले सकते हैं A B C D A। तो ये तीन लूप यहां पे आपको देख पा रहे हैं मुझे लगता है। तो आप किसी भी दो लूप में टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट I1 एंड I2 यू कैन जस्ट अप्लाई KVL इन एनी ऑफ द टू लूप्स। ओके, तो अब देखिए मैं पहले आपके लिए लूप J1 A B J2 J1 लूप में KVL लगा देता हूं। तो बच्चों from J1 to A there is no potential rise, no potential drop। from when we move from A to B, A से B की तरफ हम जाते हैं तो जो साइन हम बच्चों फेस करते हैं टर्मिनल ऑफ द सेल, यू कैन सी दैट वी फेस पॉजिटिव साइन। हियर विल राइट प्लस 6 volt। okay, 6 volt। now while passing through resistance 1 ohm we are moving in the direction of current, so we'll write plus current is I1 plus I2 and resistance is 1, so it is I1 plus I2 multiplied by 1। okay, then जब बच्चों यहां से हम यू आएंगे, आप देखिए तो करंट जो रेजिस्टेंस 1 ओम में फ्लो कर रहा है वो करंट है I2, इधर करंट I2 फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें, और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो विल राइट प्लस I2, देन द साइन वी फेस एज पॉजिटिव प्लस 2 volt and we again come back to J1, we'll write equal to 0। 6 I1 plus 2 I2 is plus 2 is equal to 0। it is I1 plus 2 I2 plus 8 is equal to 0 and we can write minus 8। so this is our equation number 1। similarly dear students, you can apply KVL in the loop second one, that is J1 J2 CD J1। इस लूप में भी आप KVL लगा सकते हैं और आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड बाय आफ्टर राइटिंग दीज टू इक्वेशंस
you can just simply solve them by any of the method of substitution or method of elimination, and you can find the values of current I1, I2, and just by adding them you can get current I1 plus I2. So this way you can find the current in each branch of the network. तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको किरचॉफ्स लॉ अच्छे से समझ आए, उनकी एप्लीकेशंस भी अच्छे से समझ आई. ओके, नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य शर्मा, मध्य प्रदेश. आदित्य शर्मा जी पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, the amount of current entering the junction and leaving the junction are same, but why? So dear student, I think now your question is clear to you, because this law verifies law of conservation of charge. The total amount of current is nothing but a charge. The total amount of charge entering the junction is equal to total amount of charge leaving the junction, as charge is always conserved, because junction is neither a source of charge nor it is a sink of charge. ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा. I hope now you can try different type of numerical problems in your NCERT textbook or NIOS books. They are very wonderful books. Thank you dear learners. Thank you NIOS. Thank you, Thank sir. you very much.